Next chapter is chapter 13, surface areas and volume. So first four exercises are based on areas, surface areas, and last four exercises are based on volume. सरफेस एरिया हम 2D फिगर्स का पहले कर चुके हैं और हमने सॉलिड्स का भी किया है इन क्लास 8 वी हैव डन the area of cube, cuboid and cylinder. Now two more things will be added here, that is two more solids, that is cone and sphere. So firstly, let's start from the first exercise. In first exercise, you need to find out the area, surface area of cube and cuboid. So here we say surface area because if you take a cuboid, sorry, let's take a cuboid first of all. So cuboid is of this form. So you can see it has 6 faces. इसके 6 surface है. तो इन इसका अगर आप total area की बात करोगे तो you will, if you talk about the total area, that means you are talking about the area of all surfaces. सभी surface का area find out करके उसको add करोगे तो आपको total surface area मिलेगा. That's why we say that surface area. If you have simple rectangle, then it's just you say area. But when we have more surfaces here, base, top also, sides also, front and back also, then we say it as surface area. So here we have two areas, total surface area and lateral surface area. Each solid will be having total surface area and lateral. टोटल में द एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस, जितने भी फेसेस हैं उन सब का एरिया. और लेटरल मतलब इफ वी विल नॉट इंक्लूड टॉप एंड बेस, अगर हम टॉप और बेस को इंक्लूड नहीं करते तो हम बोलते हैं लेटरल. जैसे अगर हम एक रूम की बात करें तो अगर हम सिर्फ 4 वॉल्स पे कुछ पेंट कर रहे हैं या 4 वॉल्स को कंसीडर कर रहे हैं, so that means we are talking about here, we will take here lateral surface area. और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया की, मतलब हम सीलिंग भी ऐड कर रहे हैं और फ्लोर भी ले रहे हैं पूरे रूम की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया. सो लेट्स टेक as this as L, this as breadth, width, and this is height. 3 dimensions are here, length, breadth and height. अगर आप बेस का एरिया देखो, it will be L into B, LB. If you see the area of top, it's also LB. साइड का एरिया देखोगे तो BH, BH, बेस इंटू हाइट, बिकॉज हर फेस रेक्टेंगुलर है, एवरी फेस इज रेक्टेंगुलर. तो साइड वाला वो भी BH हो गया, इधर लेफ्ट वाला भी BH हो गया, बेस भी हाइट H. फ्रंट वाला देखोगे तो बेस L है और विड्थ के प्लेस पे हाइट है, तो फ्रंट वाला हो जाएगा LH और LH फ्रंट में. सो आपके पास 2 बेसिस हो गए, टॉप और बॉटम, मींस 2LB प्लस आपके पास 2 साइड्स हो गए प्लस 2BH और प्लस फ्रंट और बैक हो गए तो 2HL. You can take 2 common here also. If you take 2 common, then it will be LB. L means L multiply B plus BH plus HL. So this is the total surface area of cuboid, right? Here we are talking about cuboid. ठीक है. Lateral surface area. Lateral surface area means we are not including here base and top. हमने इसमें base और top को include नहीं करना है, मतलब हम LB को include नहीं करेंगे, ना ही base का area लेंगे ना ही top का. तो 2LB माइनस हो जाएगा, तो आपके पास एरिया हो जाएगा लेटरल सरफेस का 2BH प्लस 2HL. यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो और H भी कॉमन ले सकते हो, देन यू विल गेट इट 2 into L plus B into H, or you can say B plus L or L plus B, both are same things. 2 into L plus B into H will be the area of 4 walls, you can say, right? Or lateral surface area when we are not to take base and top. Next, let's take cube. So cube and cuboid, they are almost same. One difference is here that
all of the edges are equal in cube, means length, breadth, height is same. ठीक है, so we can take like L, L and L. आप x भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो. लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही सेम है, तो सेम ही होगा. If you talk about total surface area, then area of all surfaces, हर सरफेस की साइड L है, मतलब हर जो सरफेस है ना वो स्क्वायर है. जैसे क्यूबॉइड में हर सरफेस रेक्टेंगुलर होता है, वैसे ही क्यूब में हर सरफेस स्क्वायर हो गया. स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो साइड यहाँ पे है L, मतलब हर फेस का एरिया कितना हो गया, L इंटू L, L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर हो गया. कितने सरफेस होते हैं, 6. then total area will be 6L square. So it's a cube where all surfaces are square, जिसमें साइड आपके पास L है, right? So it will be 6L square, क्योंकि 6 surfaces होते हैं और हर स्क्वायर का एरिया, हर फेस का एरिया will be L square. लेटरल के लिए will not include top and base. लेटरल सरफेस के लिए हम टॉप और बेस को नहीं लेंगे. So what we will do here, हम टॉप और बेस को माइनस करके बाकी के 4 फेसेस लेंगे. सो इट्स एरिया विल बी 4L स्क्वायर. ठीक है, इट विल बी 4L स्क्वायर. राइट, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 इज a plastic box 1.5 meter long, 2.5 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. Your dimensions you have given 1.5 meter long, that is length given. Breadth is given 1.25 meter and 65 centimeter deep, that is height. Plastic box depth given है, that means it will be height. Then it is open at the top. Top से open है box. Ignoring the thickness of the plastic sheet. प्लास्टिक शीट की थिकनेस को आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल ना बहुत ही थिन है प्लास्टिक शीट, कि मतलब जितना ही बॉक्स का एरिया होगा उतना ही प्लास्टिक शीट का एरिया होगा. Determine the area of the sheet required for making the box. आपको ये बताना है कि बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए होगी. राइट, आपको यू हैव टू टेल टू मेक द बॉक्स हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड. तो जितना बॉक्स है उतनी ही शीट चाहिए, क्योंकि दे आर सेइंग दैट इग्नोर द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, कि आपको प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करना है, मतलब जितना बॉक्स है उतनी ही प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड है. एंड वन मोर थिंग, कि जो ऊपर वाला टॉप बेस है वो ओपन है. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं, इट्स मीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले हम इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं. राइट, चेंज 65 सेंटीमीटर इंटू मीटर divided by 100, it will be 0.65 meter. Right, now we will find out area of the box. जितना एरिया ऑफ बॉक्स होगा उतनी ही हमें शीट रिक्वायर्ड होगी प्लास्टिक की. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सी, टॉप से ओपन है, इट्स ओपन फ्रॉम द टॉप, तो आपके पास एक तो 4 साइड्स लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, साथ में एरिया हो जाएगा बेस का, क्योंकि टॉप से तो ओपन है. ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है, L इंटू बी. लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें बेस का एरिया ऐड कर देंगे, और यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो, जैसे हमारे पास होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2LB के प्लेस पे एक LB भी ले सकते हैं, LB प्लस 2BH प्लस 2HL. डायरेक्टली यहाँ पर भी पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यू विल पुट द वैल्यूज एंड यू विल फाइंड आउट द एरिया. 2 इंटू लेंथ इज गिवन हियर 1.5, breadth is given here 1.25 into height is 0.65 प्लस इसको आप अलग सॉल्व करोगे, प्लस में आपके पास L इंटू बी को अलग सॉल्व करोगे, 1.5 इंटू 1.25. right, then you will add it 2 into 1.5 plus 1.25
it will be 2.75 into 0.65, इनको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1.5 into 1.25, it will be 1.875. फिर आप इधर ऐड करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसमें ये ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर, राइट? व्हाट द आंसर यू गॉट? सी, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज हमने डायमेंशंस मीटर में ली थी, सो योर आंसर विल बी इन मीटर स्क्वायर. When you will add it, you will get answer in meter square, right? This was the first part. Let's do the second part now. Now we have area as 5.45 meters square. What the second part says, the cost for, you have to find out, determine the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost rupees 20, आपको sheet की cost बतानी है और 1 meter square की cost given है rupees 20. You will make the equation here. और आप डायरेक्टली कॉस्ट भी बता सकते हो. आपको पता है कि 1 मीटर की कॉस्ट अगर रुपीज 20 है, you will write down like this, cost of sheet 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 5.45 into 20, that is rupees 109, राइट? और अगर आपके पास ये, अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करते पहले डायमेंशंस को, तो आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर को फिर मीटर स्क्वायर में चेंज करते, फिर मल्टीप्लाई करते, क्योंकि आपको जो कॉस्ट गिवन है वो पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है, बट यू कैन यूज एनी मेथड. Second question is, the length breadth height of a room is given 5 meter, 4 meter and 3 meter. Length breadth height is given here. Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. आपको कॉस्ट बतानी है व्हाइट वॉशिंग की. डेफिनेटली व्हाइट वॉश एरिया पे होती है, सो विल फाइंड आउट एरिया. वॉल्स करनी है और सीलिंग करनी है, बेस फ्लोर को नहीं लेना है, ठीक है. एंड यू आर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग. सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट करोगे, सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले आप एरिया फाइंड आउट करोगे 4 वोल्ट्स का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, सीलिंग का एरिया. उसके बाद जो आपके पास एरिया आएगा, बाय पुटिंग द वैल्यूज, you will multiply it by 7.50 because all are in meter directly. जो एरिया आएगा आप उसको 7.50 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे, you will get the total cost, right? Now third question is, the floor of rectangular hole has a perimeter 250 meter. Here you have given a rectangular hole का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर गिवन है, इस फ्लोर का पेरीमीटर गिवन है 250. पेरीमीटर गिवन है मतलब आपको गिवन है 2 इंटू एल प्लस बी गिवन है, ठीक है. दैट मीन्स यू हैव गिवन 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज गिवन हियर 250, राइट? If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, cost of painting given है 4 walls की at the rate of rupees 10 per meter square in rupees 15,000, then find the height of the hole. आपको height find out करनी है. एक तो आपको perimeter given है बेस का, सेकेंडली आपको कॉस्ट गिवन है पेंटिंग की 4 वॉल्स की एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन 15,000. यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है. सी, कॉस्ट गिवन है 4 वॉल्स की 10 पर मीटर स्क्वायर, राइट? मतलब रुपीज 10 कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर पे, राइट? Here you have given rupees 10 is cost at 1 meter square. आपको बताना है जो 15,000 cost है, रुपीज 1 किस पे cost होगी? 1/10 पे. तो रुपीज 5,000 मीटर स्क्वायर, सॉरी,
₹5,000 कॉस्ट जो है वो कितने मीटर स्क्वायर पे है? 1/10 इंटू 15,000। ठीक है, यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा 4 वॉल्स का, क्योंकि आपको 4 वॉल्स की कॉस्ट गिवन है पेंट करने की। 10 किस हिसाब से गिवन है? 10 रुपीज कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर पे, तो 15,000 मीटर कॉस्ट कितने पे होगी? 15,000 अपॉन 10, दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1500 मीटर स्क्वायर ये आपके पास आया 4 वॉल्स का एरिया। ठीक है, 4 वॉल्स का एरिया आपके पास आया, तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 इंटू 4 वॉल्स का एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कितना आ गया आपके पास? 1500। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी आपको गिवन है 250, पुट कर दो। 250 एच किसके इक्वल हो गया? 1500 के। एच इज इक्वल टू 1500 divide by 250. Solve it, you will get it 6 meter. So height will be 6 meter. Again I am repeating this question. आपके पास बेस का पेरीमीटर गिवन है, तो बेस की डायमेंशन एल बी है, तो पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, वो 250 है। 10 रुपीज कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की, तो 15,000 कॉस्ट हो जाएगी 1500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की। और पेंट किसको किया है? 4 वॉल्स को, मतलब एरिया 4 वॉल्स का हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। वहां से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 4 वॉल्स का एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो हमें 1500 हमने फाइंड आउट किया है। 2 इंटू एल प्लस बी वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। Question 4 is, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर से आप टोटल एरिया कितना पेंट कर सकते हो? टोटल एरिया एक कंटेनर से जो आप पेंट कर सकते हो दैट इज 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 मीटर सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर into 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर? इस कंटेनर से कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं? एंड ब्रिक की डायमेंशन गिवन है, सो यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू डोंट नीड टू सोल्व, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्रिक्स? देखो, अगर सपोज एक तो ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो कि मान लो x नंबर ऑफ ब्रिक्स है, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो ये आ जाएगा टोटल एरिया। ठीक है ना, मान लो एक कंटेनर से x पेंट हो सकती है, तो x मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू टोटल एरिया जितना कंटेनर का है। तो मतलब अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? टोटल एरिया को डिवाइड करोगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक से। ठीक है, जितना एक कंटेनर से एरिया पेंट हो सकता है डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो आपको मिल जाएंगी नंबर ऑफ ब्रिक्स हियर। यही करेंगे हम यहाँ पर। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू total area, which is, but see here it's given in meter square, it's in centimeter, तो हम क्या करेंगे? what we will do here, हम डिवाइड करेंगे, हम सबसे पहले मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट? सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे? इसको 100 इंटू 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करके, सो इट विल बी चेंज इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9.375 को आप 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन इट विल बी 93750, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे एरिया ऑफ ब्रिक। एरिया ऑफ ब्रिक आप कैसे निकालोगे?
2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि ब्रिक क्यूबॉइड की फॉर्म में होगी। सो आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, 2 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करोगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स is equal to total area, which is 93750 in centimeter square, divide by area of one brick. ठीक है, now solve it, you will get the number of bricks. Remove the decimal and take here multiply 10, it will be cancelled, 100 bricks will be the answer here. This was the question number 4. Next question is question number 5. A cubical box has each edge 10 centimeter. एक cubical box है जिसकी edge हमें given है 10 centimeter, और एक cuboidal box है। cubical box की dimension है साइड 10 centimeter length breadth height, और cuboidal box की हमारे पास dimensions given है 12.5 centimeter into 10 centimeter into 8 centimeter length breadth height. Which box has greater lateral surface area and by how much? आपको बताना है इन दोनों बॉक्सेस में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है विच बॉक्स है स्मॉलर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया स्मॉलर है टोटल सरफेस एरिया, और कितना कम है। तो एक बार आप लेटरल फाइंड आउट करोगे और बताओगे किसका ज्यादा है कितना, एक बार टोटल फाइंड आउट करोगे दोनों का और बताओगे किसका कितना कम है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 completed.